friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College Ghaziabad, and in my previous lecture I have discussed what is the software designing and what is function oriented design and what is difference between the function oriented design and object oriented design, and what is structure chart and what are the IEEE standard of the SDD, software design description. And today I have want to discuss object oriented design and top down approach and bottom up approach. Okay, what is the object oriented design basically? Object oriented design is what? Object oriented design is result of focusing attention not on the function performed by the program, but instead of the data that are manipulated by the program, that it is orthogonal of function oriented design, right. And object oriented, that is the one definition. And what is that? Next is what? Object oriented design begins with the examination of the real world things that are part of the problem to solve. These things which will be called objects or characterize individual in terms of their attributes and behavior. अब बेसिकली अगर हम शॉर्ट में समझें तो अगर हम कोई फंक्शन ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या है, राइट जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो हमेशा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फंक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट है. जैसे आप सी में कोई प्रोग्राम बनाएं तो आप क्या करेंगे, हर चीज़ का आप फंक्शन बनाएंगे. अगर कैलकुलेशन बनाना है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट की प्रोफाइल बनानी है तो इट्स वेरी टफ एक्चुअली. बट अगर आपको ओप्स कॉन्सेप्ट में, जावा में, C++ में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, स्टूडेंट की एक क्लास बना देंगे, राइट. उसके अंदर क्लास स्टूडेंट, राइट, और इसके अंदर जो भी डेटा टाइप आपको रखना है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मार्क्स एट्सेट्रा, और उसका मेथड आप बना देंगे, राइट. तो वो सारे कोड आप किसके अंदर लिखेंगे, क्लास के अंदर, राइट. इन दैट क्लास जब भी आप इस क्लास को इनहेरिट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, कोई इंस्टेंस आएगा जो कि हम स्टूडेंट बोलेंगे. इस क्लास का ऑब्जेक्ट कोई इंस्टेंट हो सकता है, रोहित, राम एट्सेट्रा, वट, राइट. These are the beauty of the object oriented concept. But before the coding, what we will done, make a design for that software. What are the, according to the requirement, first to convert the design. A design दो तरह की मैंने बताई आपको क्या, function oriented design and object oriented design. तो today I have discussed what, object oriented design. Object oriented design जब भी हम बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए जिसमें इम्प्लीमेंट करेंगे आप. The basic concepts of object oriented design is not dependent on the any specific implementation language, right. किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है ये. ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है तो जावा में ही बनाना है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज उसको इम्प्लीमेंट ईजिली कर पाएंगे, जैसे कि C++ है, जावा है, पाइथन है, C# है एट्सेट्रा, राइट. एंड बिहेवियरल they do things and the state which change the when the do things. वो state का है. behavioral मतलब जिस तरह से बिहेव करेगा कोई फंक्शन, क्या उससे वर्क कराने वाले हैं, राइट, किस तरह से वो रिएक्ट करेगा. एंड स्टेट इज व्हाट, ट्रांजिशन. एक स्टेट जो भी आप इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होने के बाद नई स्टेट चेंज होगी. ऑब्जेक्ट यू नो वेरी वेल एक्चुअली. द ऑब्जेक्ट इज द यूज वेरी फ्रिक्वेंटली एंड कन्वे द डिफरेंट मीनिंग with the different circumstances. Here the meaning is the entity avail the save of the state information and which offer the number of operations, that is called behavior, to entire examination or affect this state, and object characterized by the number of operations and state which is remember the effect of these operations, right. एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है ना किसी क्लास का. क्लास क्या है, सिंपल ब्लूप्रिंट ऑफ एनी आइडिया और एनी कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मैसेज बेसिकली, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट्स व्हाट, विद द हेल्प ऑफ मैसेज, कम्युनिकेट्स बाय द मैसेज पासिंग, एंड messages consist of the identity of target object, the name of the requested operation
एंड द अदर ऑपरेशन नीडेड बाय द परफॉर्म द फंक्शन। जो मेथड्स हैं, जो फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मैसेज पासिंग जो भी डेटा आएगा मैसेज पासिंग के थ्रू आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन जिसके लिए वो लॉजिक लिखा गया है, जो लॉजिक लिखा गया फंक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, आउटकम देगा वो। तो मैसेज आर ऑफ्टन इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोसीजर फॉर द फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल करनी है तो क्या होगा, मैसेज पासिंग के थ्रू होगा। एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली, ये सब आप उस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं आप लोग। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी इज मैनेज्ड। हम हमेशा क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको हाइड करते हैं। जैसे अभी आपको फ़ोन यूज़ करना है, आपको सीधे सेंड बटन मिलती है ना, कि उसके बिहाइंड द लॉजिक कि सेंड बटन कैसे काम कर रही है। दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट बटन ना, उसके पीछे लॉजिक लिखा गया, बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, बहुत सारे। आपको कोई मोबाइल ही चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स हैं, बहुत सारे कोड्स पड़े हुए, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। उसकी ज़रूरत है क्या, नहीं, जितना उस यूज़र को नीड है सिर्फ उतना शो करना। दैट इज़ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। मैनेज द यूजिंग abstraction. Abstraction is the elimination of irrelevant and amplification of the essential. जितना एसेंशियल डेटा है सिर्फ उतना दिखाना है, इनरिलेवेंट डेटा को जिसको यूज़ नहीं उसको शो नहीं करते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे एक आपने क्लास बनाई क्या, कार। अब कार के मल्टीपल टाइप्स हैं, इंडिका कार है, सेंट्रो कार है, मारुति है, इंडिको है, राइट। ऑल आर द टाइप्स ऑफ कार, राइट। दैट इज व्हाट, काइंड ऑफ कार, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, राइट। सारी क्या है, कार हैं। मतलब अभी अगर सुपर क्लास समझ लें इसको, इसके अंदर चाइल्ड क्लास में क्या क्या चीज़, इसके अंदर क्या क्या होगा, मूविंग फंक्शन होगा, मूव फंक्शन है ना, ब्रेक होगा, ब्रेक फंक्शन होगा, है ना, एक्सेलरेशन होगा, है ना, एंड मेनी मोर, एंड फ्यूल, टायर, गियर एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स आर वेयर, और ये सारी चीज़ें कार में होंगी। बट ब्रांड स्पेसिफिक अगर हम इंडिका, सेंट्रो, मारुति की बात, कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो उसको आप इनहेरिट करके कार तो सारी बन जाएंगी, बट डिज़ाइन में चेंजेस होगा, माइलेज में चेंज होगा, फंक्शनैलिटीज़ में चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ों में चेंज होगा। तो वो चेंज आप क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं जब आप ना, दैट इज़ व्हाट, फंक्शन तो यहाँ बन गया, कार में वो सारे फंक्शन होंगे। होता है इसमें 5 गियर हो, इसमें 4 गियर हो, मे बी फॉर एग्जाम्पल ओनली, राइट। कोई स्पोर्ट्स कार है, हो सकता है यहाँ पे 7 गियर्स हों, इसकी हाई लिमिट ज़्यादा हो, स्पीड की इसकी कम हो, इसकी ज़्यादा हो स्पोर्ट्स कार की, मे बी, बट रहेगी तो सब में, राइट। जो भी फंक्शनलिटी होती है कार की, 4 व्हील्स, स्टीयरिंग, ब्रेक, सीट्स एटसेट्रा, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एक्चुअली। देन क्लास स्क्वायर इज व्हाट, नेम, attributes and operations. The square is the class name, and color and points, that is attributes, that is data, and set color and draw. स्क्वायर को आप जैसे ड्रॉ करना चाहें, साइज डिफरेंट हो सकता है, तो these are the function methods actually, that is a class diagram actually, right. And attributes is a data value that held by the object in a class. Sorry. The square class has 2 attributes in previous example, that is the color and array points. Each attribute has the value of each object instance, as I told you previously. The attributes are shown the second part of the class, right. And operations is what? An operation is a function of transformation that may be applied on the object in the class, in a class. And square class, अगर हम स्क्वायर क्लास की बात करें, we have operations. What is that? set color और draw. एक draw फंक्शन है, that draw मेथड बनाया हमने, उसका लॉजिक लिखा होगा, डिफाइन करेंगे जहाँ भी, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो, और set color वो भी हम उसका लॉजिक लिखेंगे. And all the object in the class share the same operation and the object known its class. Hence the right implementation of the operation, methods का लॉजिक लिखेंगे जो, and operation और third part of the class, indicate it in this figure actually, right, in this diagram. Okay, that is a class shape. इस shape different हो सकती हैं, triangle and square. That is a super class, that is a super class, that is a child class,
या ड्राइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं आप, राइट। ये पेरेंट क्लास बोल सकते हैं आप, एज जैसा आप चाहें। अब ये दोनों क्लासेस क्या कर रहे हैं, इसको इनहेरिट कर रही हैं, राइट, एंड दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। मतलब शेप नाम की क्लास है, उसको कौन इनहेरिट कर रहा है, स्क्वायर नाम की क्लास और ट्रायंगल नाम की क्लास, राइट। इसके दो चाइल्ड हैं, बट इन दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इससे फंक्शनलिटी इनहेरिट कर रही हैं। अब फंक्शनलिटी क्या है, पॉइंट एंड ड्रॉ, एंड पॉइंट एंड ड्रॉ। बट ये स्क्वायर है तो 4 पॉइंट्स होंगे इसमें, दिस वन, राइट, तो ऐसा कुछ ड्रॉ हो जाएगा। ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट्स होंगे तो ऐसा कुछ ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट। एंड ड्रॉ आप जैसे जो करना चाहें, तो ट्रायंगल ड्रॉ होगा, इससे स्क्वायर ड्रॉ होगा, राइट। अब सेट कलर भी कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। दैट इज द एक्चुअली ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब ये किसी भी प्रोग्रामर को आप दे दो तो वो कोड कर लेगा, राइट। ये डिज़ाइन अगर दे दो आप, तो कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, कितने डेटा टाइप कौन से बनाने हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, राइट, कितने मेथड्स बनाने हैं, लॉजिक लिखना है उसे, बाकी सब स्ट्रक्चर पूरा डिसाइडेड है, कितने हेल्प मिल जाएगी, राइट, उसको। एंड दीज आर द पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, हायरार्की, इज ऑल आर द feature of the object oriented programming and design also. Polymorphism is the abstract just interface of the operation and leave the implementation of subclasses to call the polymorphism operation, and process is called polymorphism, right. Encapsulation is also commonly referred as information hiding encapsulation, right. information को हम डेटा को बाइंड कर देते हैं और जितनी इंफॉर्मेशन होती है उतना ही हम उसको सीधे पैकेज के फॉर्म में दे देते हैं, बाइंड करके। मान लो आपने स्टूडेंट क्लास बनाई, अब जैसे आपने स्क्वायर क्लास बनाई थी, उसके अंदर आपने मेथड डिसाइड करा, डेटा डिसाइड करा, तो आपको सिर्फ डेटा और पैकेज नहीं मिलेगा, पूरी क्लास मिल सकती है। या फिर आप उसमें एक्सेस मॉडिफायर लगाएं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन केस ऑफ जावा, राइट। इन दैट केस दैट इज पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। आपने कोई क्लास भी बना दी ना, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द एनकैप्सुलेशन एक्चुअली। अगर आपने स्क्वायर क्लास जो बनाई थी प्रीवियस में, तो उसमें क्या था, पॉइंट, ड्रॉ, दो फंक्शंस थे और कुछ डेटा टाइप थे। वो डेटा टाइप जो भी स्क्वायर क्लास को इनहेरिट करेगा या शेप क्लास को इनहेरिट करा स्क्वायर ने और ट्रायंगल ने, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, उसको आप ओवरराइट कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या हुआ, एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल के फॉर्म में जितने अंदर चीज़ें आप रखी थी सब आ गया। दैट इज कॉमनली रिफर्ड एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड कंसिस्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो इंटरनल डिटेल है वो जानने की जरूरत नहीं, कैसे ड्रॉ हो रहा है, क्या ड्रॉ हो रहा है, अपने अपने जो भी कन्फिगरेशन चाहिए थी, वो अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी वो अपने कोड किया, ओवरराइट कर दिया, अदरवाइज एज इट इज़ यूज़ कर लिया, तो लॉजिक जानने की जरूरत नहीं क्या लगा था, सीधे आपका है ना। दैट इज रीयूजबिलिटी ऑफ कोड, जिससे आपकी टाइम और काफ़ी कुछ आपका सेव हो जाता है, टाइम भी सेव होगा, बजट भी स्लो हो जाएगा क्योंकि दोबारा कोड नहीं करना पड़ेगा, राइट। किसी एक ने कोड कर दिया, आपको यूज़ है तो आप सीधे यूज़ कर लीजिए, जितनी चीज़ मॉडिफाई करनी उसको ओवरराइट कर दीजिए। हायरार्की involve the organization sometimes according to the some particular order of or rank. It is another mechanism of reducing the complexity of the software is being able to treat the express sub type of the generic ways, right, like this is the assets, बैंक है, सिक्योरिटी है, रियल इस्टेट है। अब सारे एसेट्स हो सकते हैं आपके, एंड सेविंग्स बैंक में आप क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, है ना, स्टॉक करते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, दैट इज सिक्योरिटी पर्पज़ के अपने फ्यूचर के लिए, एंड रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑल आर द एसेट्स, दैट इज टाइप ऑफ एसेट्स एक्चुअली, है ना। ये इसकी बैंक के अंदर सब टाइप्स हैं, इस सेविंग भी हो सकती हैं, कोई भी चेकिंग वगैरह कुछ आपका है, जो भी आप सेव करते हो, राइट, एंड स्टॉक, बॉन्ड एट्सेट्रा। तो ये मल्टीपल टाइप्स क्या हैं, ये सारे अब बाइफिकेशन किसका है, अगर हम एसेट्स को मल्टीप्लाई हुए कोई हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देन हाउ टू डिकम्पोज इट लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके बेसिकली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तक, जस्ट लाइक वाटरफॉल मॉडल, बट इट्स नॉट अ वाटरफॉल मॉडल एक्चुअली, दैट इज अ प्रोसीजर, what are the steps used for making requirement to design document. The first one is what, create case module, that is called use case. use case पता है ना आपको,
किसी भी लॉगिन मॉड्यूल का लॉगिन पेज का यूज़ केस यही होगा ना, ओल्ड यूज़र है तो लॉगिन कर लेगा वो आईडी पासवर्ड डाल के अपना, और अगर न्यू यूज़र है तो वो क्या करेगा, साइन अप करेगा पहले। अगेन ड्रॉ द activity diagram, after that draw the interaction diagram, after that draw the class diagram and draw the state chart diagram। कनेक्शन क्या है क्लास में आपस का, एक क्लास से दूसरी क्लास में स्टेट क्या चेंज हो रही है, उसमें आप मल्टीपल जो आपके रिलेशंस हैं वो डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। एंड ड्रॉ द डिकम्पोजिशन डिप्लॉयमेंट डायग्राम। देन आफ्टर दीज कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स वी कंप्लीट द डिजाइन डॉक्यूमेंट, राइट। तो क्रिएट द यूज केस मॉडल एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस डायग्राम, एंड एक्टिविटी डायग्राम ऑल्सो, right। How to create it, activity diagram actually like this, use these symbols, that is start state, and receive order, secondary store for delivery, second invoice, get payment, delivery goods and order closed, that is a stop state। अब ये डायग्राम क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सीक्वेंस वाइज, पहले आपने क्या किया, रिसीव ऑर्डर करा, स्टार्ट किया, रिसीव ऑर्डर मिला आपको, दो ऑप्शन है आपके पास, क्या, सेंड ऑर्डर टू स्टोर फॉर डिलीवरी, एंड कस्टमर को आप क्या बोलेंगे, रिसीव, इनवॉइस भेजेंगे। अगेन डिलीवर्स गुड्स थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट मॉडल जो भी आपका है, एंड पेमेंट आपको आ जाएगी तो आपका क्या होगा, ऑर्डर क्लोज हो जाएगा और डिलीवरी सक्सेसफुली होने के बाद, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी डायग्राम। अब ये क्या शो कर रहा है, पूरा प्रोसेस शो कर दे रहा है आपको ना कि कैसे फ्लो होना है ऑर्डर लेने के बाद, एंड स्टार्ट और एंड कैसे करना है। दैट इज द अगेन यूज द सिंबल्स फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, राइट। डिपेंडेंसी, एग्रीगेशंस एंड जनरलाइजेशन, राइट। तो डिपेंडेंसी शोइंग बाय द डॉटेड एरो, एग्रीगेशन शोइंग बाय दिस डायमंड एरो, एंड जनरलाइजेशन यूजिंग बाय द ट्रायंगल एरो। दैट इज द बेसिकली डिपेंडेंसीज क्या हैं, the connect two classes dependencies are always unidirectional and show the one class dependent on the definition another class। अब जैसे आपने स्क्वायर क्लास बनाई थी, वो किस पे डिपेंडेंट थी, शेप क्लास पे, राइट। तो ट्रायंगल और जितने भी दो क्लासेस थी आपकी, शेप क्लास और ट्रायंगल क्लास, सॉरी स्क्वायर क्लास और ट्रायंगल क्लास, वो किस पे डिपेंडेंट थी, शेप क्लास पे। तो उस पर जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो राइट करेंगे, अपना खुद का भी बना सकते हैं बट डिपेंडेंट थी। जैसे आपको पेमेंट गेटवे में आपको एग्जांपल दिया था, दे रहा हूँ, तो उसमें क्या है बेसिकली, अब जब तक आप ओटीपी का मॉडल तभी रन होगा जब पहले आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर, नेम एंड सीवीवी नंबर जब मैच कर जाएगा, देन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, राइट। और सारे डेटा मैच होंगे तब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो डिपेंडेंट है ना, पहले ये वाली क्लास रन होगी, देन सेकंड क्लास पे जाएंगे ओटीपी सेंडिंग मॉड्यूल पे, अदरवाइज ये क्रेडिट कार्ड का डिटेल ही ठीक नहीं है तो वहीं पे अबॉर्ट हो जाएगा ट्रांजेक्शन। दैट इज डिपेंडेंसी एक्चुअली। अगेन एग्रीगेशन और द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है एग्रीगेशन, एज एन द एग्रीगेशन रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट ऑफ, इट्स एग्रीगेशन क्या होता है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कार के क्या क्या पार्ट्स हैं, स्टीयरिंग है, व्हील हैं, ब्रेक हैं, एसेट्रा, राइट। ऑल आर द एग्रीगेशन रिलेशनशिप। बट जनरलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कितने टाइप्स की कार है, इंडिका, मारुति एसेट्रा, ऑल आर द शोइंग द जनरलाइजेशन। जनरलाइज वे में कार हैं सारी, कितने टाइप्स की कार हैं, कितने टाइप्स की कार, स्टूडेंट हैं कितने टाइप के स्टूडेंट हैं, बीटेक के हैं, एमबीए के हैं, पॉलिटेक्निक के हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। और ऐसे कॉलेज है तो कॉलेज के पार्ट्स कितने हैं, कॉलेज किन की चीज़ों से मिलके बना है वो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉलेज। फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, एचआर डोमेन है, अकाउंट डोमेन है, क्लासरूम्स हैं, बिल्डिंग्स, फैकल्टी, लैब, लेबोरेटरी, ऑल द पार्ट ऑफ द कॉलेज, दैट इज एग्रीगेशन रिलेशनशिप। बट इन द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कितने टाइप्स के कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, किन टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, किन टाइप के आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ऑल आर द टाइप्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, दैट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अगर हम कॉलेज को वो करें, यूनिवर्सिटीज़ को अगर बाइक, एक जनरल फॉर्म क्या है, सुपर क्लास क्या हो, यूनिवर्सिटी, कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, एसेट्रा, राइट। तो दिस इज द जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, दैट इज द डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली। यहाँ पे आप स्टेट दिखाते हैं आप, एंड दैट इज द इवेंट एंड स्टेट। इवेंट स्टेट क्या होता है, इवेंट जो होता है एक टाइम इंस्टेंस पे होगा, स्टेट कुछ ड्यूरेशन तक रहेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड स्टेट, जब आप कोई इवेंट फायर जैसे दैट इज क्लिक इवेंट,
क्लिक इज अ इवेंट, एक टाइम इंस्टेंस, आपने की प्रेस करी कीबोर्ड की, दैट इज अ टाइम इंस्टेंस पे आपने क्लिक प्रेस किया, उसके कीबोर्ड के करने से जो चेंज हुआ दैट इज अ स्टेट, अगली की प्रेस करेंगे तो स्टेट चेंज होगा। जैसे आपने वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, मान लो आपने एक की ए प्रेस किया तो ए टाइप हो गया, दैट इज अ वन स्टेट। आपने बी टाइप किया तो नेक्स्ट आपने इवेंट फायर किया, देन जो स्टेट बी हुआ नई स्टेट आ गई, दो अल्फ़ाबेट्स आ गए वहाँ पे, दैट न्यू स्टेट, राइट, दैट इज अ इवेंट स्टेट एंड दिस इज अ इवेंट स्टेट चार्ट डायग्राम एक्चुअली। तो परचेज अ बुक, न्यू बुक, एंड बुक इज नंबर्ड एंड स्टैम्प्ड, अवेलेबल और नॉट, अगर अवेलेबल है तो इश्यू हो जाएगी, अदरवाइज अगर जो भी इशू होगी तो ओल्ड और डैमेज हुई है तो उसको डिस्पोज कर देंगे, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, राइट। दैट इज ए यूज केस डायग्राम एज आई टोल्ड यू, है ना। ये किसके लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए बेसिकली। तो लॉगिन करेंगे तो लॉगिन कौन करेगा, ऑपरेटर एंड लाइब्रेरियन भी कर सकता है। बार कोड रीडर क्या करेगा, सिर्फ इशू बुक करेगा रीड करके और रिटर्न बुक करते वक्त लेगा कि बार कोड रीड करके। एंड यूज़र क्या करेगा, क्वेरी कर सकता है बुक के लिए। मेंटेनेंस कैटलॉग कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा, राइट। जितने भी जो भी फंक्शनैलिटी जिसके लिए यूजेबल उससे कनेक्टेड है ये, और ऑल आर द एक्टर्स एक्चुअली, 4 एक्टर्स, लाइब्रेरियन, ऑपरेटर, यूज़र एंड बार कोड रीडर, ठीक है। लाइब्रेरियन क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा, मेंटेनेंस लॉगिन करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, सीक्वेंस डायग्राम। जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका सीक्वेंस। अब इसमें कोई सीक्वेंस आप ब्रेक नहीं कर सकते, कोई छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। इंटर योर लॉगिन आईडी पासवर्ड, सबमिट योर डिटेल, गेट लॉगिन डिटेल्स, अगेन चेकिंग द लॉगिन, दैट इज द एंड एरर सक्सेस। इसको शो कैसे करते हैं, दिस इज द मॉड्यूल्स एक्चुअली, राइट। इसको रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं आप, है यहाँ पे। तो लॉगिन मॉड्यूल है, लॉगिन चेकर है, लॉगिन डिटेल है, दैट इज लाइफ लाइन। डॉट लाइन क्या, लाइफ लाइन, कितनी देर की लाइफ है इसमें, जितनी देर आप इसको रेक्टेंगल से क्लोज करेंगे। जैसे डाटाबेस से लॉगिन डिटेल क्या कर रहा है, सिर्फ इतनी देर के लिए सेशन यहाँ प्रोवाइड हुआ है इस मॉड्यूल का, आफ्टर दैट जैसे ही डिटेल लेगा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट जो सीक्वेंस नंबर है 1 2 3 4 5, इसको कभी आप क्विट नहीं कर सकते। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाए, लॉगिन करेंगे पहले, फिर आइटम सेलेक्ट करेंगे जो परचेज करना है, फिर उसको कार्ट में ऐड करेंगे, फिर उसका बिल जनरेट होगा, फिर बिल का पेमेंट करेंगे वाया एनी मोड, पेमेंट मोड जो भी आपका है, या कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या वॉलेट एक्सेट्रा। एंड आफ्टर दैट सक्सेसफुली आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, फिर ऑर्डर ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्डर आपने एक्सेप्ट किया तो भी मैसेज आएगा, अगर रिटर्न किया तो भी उसकी ट्रैकिंग होगी। तो ये पूरा क्या है, सीक्वेंस है, इसमें आप कुछ ब्रेक नहीं कर, ऐसा नहीं होता आपने बिना लॉगिन किया आपने शॉपिंग कर ली, नहीं, या आपने कोई आइटम सेलेक्ट किया तो भी शॉपिंग कर सकते हैं, नहीं, एक भी सीक्वेंस आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दैट इज शोइंग बाय द सीक्वेंस डायग्राम। ये डेवलपर को मिल जाएगा तो उसको सारा चैनल पता लग जाएगा, टेस्ट केस लिखना आसान हो जाएगा, इंटरफेस कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी जानना, और हर फंक्शनैलिटी आउटकम स्टार्ट टू एंड क्या कर रहा है वो सीक्वेंस डायग्राम हमारा बता देगा। कैसे बनता है, रेक्टेंगल में मॉड्यूल्स, डॉटेड लाइन से लाइफ लाइन, उस पर जो रेक्टेंगल से कवर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दैट इज कितनी देर का सेशन है वो कनेक्टेड, एंड एरोज शो कर रहे हैं फ्लो, सीक्वेंस ऑफ द फ्लो, एंड सब पे नंबरिंग भी पड़ी, राइट, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस डायग्राम। एंड दैट इज द क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम एज आई टोल्ड यू। और इसमें जो कनेक्शन है क्लासेस का वो डिपेंडेंसीज दिखा रहे हैं वाइट डॉटेड लाइन इन, है ना। दिस इज द क्लास नेम, दिस इज द डेटा टाइप एंड दिस इज द मेथड्स एंड सो ऑन। सब डेटा क्लास में यही है, टॉप पे क्लास नेम है, बीच में डेटा टाइप्स हैं और नीचे मेथड्स हैं। आपस में कनेक्शन डिपेंडेंसी, जैसे ये वाला स्टूडेंट इश्यूज़ किससे है, स्टूडेंट डिटेल से कनेक्टेड है। जब तक स्टूडेंट डिटेल यहाँ से आएगी नहीं, स्टूडेंट को वेरीफाई नहीं किया जाएगा स्टूडेंट है कि नहीं है। बुक डिटेल कहाँ से आएगी, बुक डिटेल में से आएगी, इशू बुक करनी है तो ये डिटेल इस पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट का डिटेल इस पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट क्लास पे, राइट। दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ द क्लास। एंड दो टाइप के अप्रोच होते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, एज आई टोल्ड यू दीज आर द टॉप डाउन अप्रोच। अगर हम कोई भी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो टॉप टू बॉटम अप्रोच, हम मॉडल्स को ब्रेक करते जाते हैं, बाइफरकेट करते जाते हैं, ईच ए पार्ट ऑफ द सिस्टम रिफाइन मोर डिटेल्स एंड दिस इंटायर स्पेसिफिकेशन डिटेल डिजाइनिंग इन द मेजर मॉड्यूल्स टॉप पे होते हैं, और लोअर मॉड्यूल जब सब मॉड्यूल्स हैं उसके सब मॉड्यूल्स कहाँ आते हैं, बॉटम पे। एंड द टॉप डाउन कॉन्सेप्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली राइटिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड वर्ड प्रोसेसर, and this is a top down designing step by step, breaking the problem into the parts, subparts, and break the parts into the subparts and so on, right. top to bottom multiples modules को आप ब्रेक करते जाते हैं स्मॉल मॉड्यूल्स में, और फिर स्मॉल मॉड्यूल को आप कोड करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम अप्रोच, राइट, लाइक दिस, है ना। मेन टास्क है, फिर उसको सब टास्क में डिवाइड किया, फिर उसके सब टास्क में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, राइट, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन डिज़ाइन। एंड एडवांटेज ऑफ टॉप डाउन डिज़ाइन इज व्हाट,
breaking the part in the help of the clarifying needs of to be done, and aspect the refinement of need parts become less complicated and therefore easier to figure out, and parts of the solution may be turned out of the riskable, and breaking the parts allow in the person वर्क ऑन द सोल्यूशन. जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपने जो लीफ नोट में डिसाइड किया था ना अभी प्रीवियस वन में, अब इस वाले पे कौन वर्क करेगा, इस पे कौन वर्क करेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. गेट इक्वेशन, गेट डेल्टा, गेट सोल्यूशन, इसके सब पार्ट्स ये आपने एक पर्सन को असाइन कर दिया इस मेथड पे काम करने को, राइट. अब बाद में इसको इंटीग्रेट करके होल क्वाड्रेटिक सॉल्वर इक्वेशन बन जाएगी आपकी, राइट. एंड अगेन लाइक दिस, कोई घर बनाना है तो विंडोज़, डोर्स, चिमनीज, रूफ, पूरा आउटडोर ईच एंड एवरीथिंग पार्ट ऑफ द डिफरेंट मॉडल में ब्रेक कर दिया और सब बंदे को साइन कर दिया कि आप ड्रॉर बना दो, आप चिमनी बना दो, आप डोर्स बना दीजिए, आप विंडोज़ बना दीजिए, तो पूरा घर बन के तैयार हो जाएगा जिसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, राइट. ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द हाउस, ड्रॉ द चिमनी, ड्रॉ द डोर्स एंड विंडोज़, राइट. तो ये आपने क्या किया, मॉड्यूल्स में ब्रेक करके और इंटीग्रेट करके कंप्लीट हाउस क्रिएट कर लिया, राइट. एंड दिस इज द ब्रेकिंग 2 स्टेप्स लाइक दिस. डोर को आपने डोर फ्रेम एंड डोर फ्रेम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. दैट इज द बॉटम अप अप्रोच. व्हाट इज दैट बॉटम अप अप्रोच? बेसिकली बॉटम अप डिज़ाइन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम और स्पेसिफिक डिटेल्स. अब इसमें ऊपर से नीचे जाते हैं. अगर कोई मेन मॉड्यूल्स जैसे प्रीवियस में था तो उसको आपने राइट यहाँ से हम डेवलप करना शुरू करेंगे बॉटम से, लीफ नोड से, अगर हम ट्री स्ट्रक्चर में मान लें तो. एंड द पार्ट ऑफ लिंकेज टुगेदर फ्रॉम द लार्जर कंपोनेंट विच आर टर्न्ड लाइक इट अंटिल द कंप्लीट सिस्टम फॉर्म्ड. जब तक पूरा कंप्लीट सिस्टम बन नहीं जाए तब तक हम उसे नहीं करते. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++ एंड जावा यूज़ द बॉटम अप अप्रोच. आपको ये देखने की जरूरत है. C++ एंड जावा यूज़ क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच, वेयर द ईच ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड. जैसे आप मेन मॉडल को मल्टीपल मॉडल्स में ब्रेक कर देते हैं तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करके C++ जावा में, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आप बनाने जाते हैं तो हर मॉड्यूल की क्लास बनती जाती है. बाद में उसको इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करते जाते हैं आप, राइट. This is a design of bottom approach like this. That is the main module M, M1, M2, M3, and these are the sub modules of M3. These are the sub modules of the M2. These are sub modules of M1. Right. तो ये आप आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि इसमें क्या बनाना है. इसको आप किसी एक पर्सन को असाइन कर सकते हैं टास्क, तो बाद में इसको इंटीग्रेट करके पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट. Okay guys, today I have covered top down approach, bottom up approach and object oriented design, right. Thank you.